Okay, friends, once again, welcome back and a very good afternoon to everybody. I hope you all are safe, your family member, your relative, your parents all are safe. And you are enjoying this new era, this new way of learning. Friends, on the last lecture, we had discussed uh, numerical based on the self-inductance and mutual inductance. આપણે લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર we had solved some numerical regarding on the self-inductance and mutual inductance. Today is the turn to complete the theory of this chapter. Friends, by today lecture, I am going to complete all the theory of this chapter. Basically, there are two topics are still left. One is for the AD current and second one is for the AC dynamo or AC generator. So firstly, we will discuss the AD currents and then after we switch to the AC dynamo or AC generator. So if you have a Kumar Darpan, if you have a Darpan book, so I'm talking about the question number. In that book, I'm talking about the question number which we had left, which we had skipped at that time. That is question number 16, question number 17, and question number 18. So these are the questions corresponding to the AD current. So question number 16, that is the question, what is AD current? Question number 16 is, what is the AD current? Explain by suitable example as well as discuss the method to reduce the effect of the AD current. So friends, you have to prepare this question. Basically, the method to reduce the effect of the AD current is already asked in the board examination. तो पहले एडी करंट क्या है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद वो क्यों हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, उसमें क्या प्रॉब्लम है, तो वो वाई इट इज अनवांटेड वो हम डिस्कस करेंगे और उसको कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे. तो द क्वेश्चन इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट अराइज इन योर माइंड दैट व्हाट इज एडी करंट. तो फ्रेंड्स, हमने अब तक ये देखा कि जब कोई कोइल है, कोई क्लोज्ड लूप है, तो उसके साथ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होता है एंड देन आफ्टर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कोइल चेंजेस. तो क्या होता है फ्रेंड्स, कोई लूप के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होने के बाद वो चेंज होता है, तो क्या होता है फ्रेंड्स, कोई बताएगा मुझे? EMF is induced. तो हमको पता है कि अगर कोइल के साथ कोई क्लोज्ड लूप के साथ फ्लक्स लिंक होने के द्वारा और उसके बाद अगर उसमें कुछ वेरिएशन आता है तो हमको ये पता है कि उसके अंदर ईएमएफ या करंट इंड्यूस होता है. बट अब तक जो हमने बात किया था वो क्लोज्ड लूप का बात किया था. बट अब मैं आपको एक नया चीज समझाने वाला हूं. अगर कोई मेटालिक प्लेट है, जैसे ये एक मेटालिक प्लेट है, तो अगर हम मेटालिक प्लेट को मैग्नेटिक फील्ड में से पास करते हैं, कोई भी मेटालिक मटेरियल को अगर मैग्नेटिक फील्ड में से पास करेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स उसके साथ लिंक होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसके साथ लिंक होगी और उसमें कुछ वेरिएशन भी होगा. तो फ्रेंड्स, क्लोज्ड लूप के अंदर तो करंट प्रोड्यूस होना लाजमी है, वो ऑब्वियस है. बट यहाँ पे एक्सपेरिमेंट शोज दैट whenever metallic plate, whenever a metallic object is passed from the magnetic field, in this kind of circumstances also inside the metal currents are produced, and that currents are in the circular in the path. So that is why they are known as the AD currents. AD का मतलब हुआ वो जैसे साइक्लोन का होता है ना, AD करंट, AD मतलब सर्कुलर. तो ये जो करंट होते हैं वो सर्कुलर पाथ अचीव करते हैं, इसी के वजह से उसको एडी करंट बोलते हैं. तो नया क्या सीखने मिला यहाँ पे आपको? हमको ये पता चला कि कोई क्लोज्ड लूप है, वायर का क्लोज्ड पाथ है, तो उसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होता है और उसमें कुछ वेरिएशन होगा, तो उसमें तो ईएमएफ इंड्यूस होगा ही, करंट इंड्यूस होगा ही. बट अगर कोई मेटालिक ऑब्जेक्ट को मैग्नेटिक फील्ड में से पास करते हो तो वो मेटालिक ऑब्जेक्ट के अंदर भी हमको बाहर से दिखाई नहीं देगा, बट इनसाइड द मेटालिक ऑब्जेक्ट, inside the metallic object also there are some currents induces, and that current inside the metallic object are known as a AD current. Foucault,
वैसे उसका प्रोनाउंसिएशन फुको होता है, स्पेलिंग फोकल्ट है बट उसका प्रोनाउंसिएशन फुको होता है. सो फुको was the scientist who initially invented these currents. So ये एडी करंट क्या है, तो कि भाई कोई मेटालिक ऑब्जेक्ट जब हम मैग्नेटिक फील्ड में से पास करते हैं तो मेटालिक ऑब्जेक्ट के अंदर भी, अंदर आपको पता नहीं चलेगा बट वो मेटालिक ऑब्जेक्ट के अंदर, मतलब ये अंदर, वो बाहर से आपको दिखाई नहीं देगा बट अंदर ही अंदर इलेक्ट्रॉन का मोशन होगा और अंदर ही अंदर करंट जनरेट होगा. तो उसको, ये जो इंड्यूस करंट है उसको एडी करंट बोलते हैं. एडी करंट जो मेटल के अंदर प्रोड्यूस होता है वो भी आफ्टर ऑल तो वो भी इंड्यूस करंट ही है. तो वो इंड्यूस होने के बाद क्या करेगा, आफ्टर ऑल वो भी है ना, वो इंड्यूस करंट ही है. तो वो इंड्यूस होने के बाद क्या करेगा, कोई बताएगा मुझे? आफ्टर ऑल वो भी इंड्यूस करंट ही है, तो इंड्यूस होने के बाद क्या करेगा? फ्रेंड्स, एम आई ऑडिएबल टू यू? वेरिएशन करेगा, वेराई करेगा. ये भी इंड्यूस्ड करंट ही है. तो अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ, अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ वो इंड्यूस होने के बाद फ्लक्स के वेरिएशन का, मतलब उसके खुद के जो कोज है, उसके जो वो जो किस जिसके द्वारा प्रोड्यूस हो रहा है, जिसके द्वारा वो प्रोड्यूस हो रहा है उसको अपोज करेगा अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ. आपको पता है कि लेंज लॉ ऐसा बता रहा है कि करंट इज ऑलवेज इंड्यूसेस इन सच अ डायरेक्शन दैट magnetic field due to that induced current will always oppose the change in flux. तो यहाँ पे एडी करंट भी आफ्टर ऑल इंड्यूस करंट ही है. तो वो इंड्यूस होने के बाद क्या करेगा, वो इंड्यूस होने के बाद उसके फ्लक्स के वेरिएशन को, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन को अपोज करेगा. तो एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो आपको ज्यादा समझ में आए. देखो यहाँ पे दो मैग्नेट, आपको देखो ये फिगर दिख रहा है आपको? यस सर. तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक साउथ पोल एक नॉर्थ पोल है. तो ऑब्वियसली ये दोनों के बीच में क्या होगा, नॉर्थ एंड साउथ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड फील्ड होगा. और वहां पे मैंने एक देखो पेंडुलम जैसा एक सिचुएशन मैंने अराइज किया हुआ है. तो उसमें जैसे पेंडुलम में नीचे स्फेरिकल ऑब्जेक्ट होता है बट यहाँ पे मैंने एक प्लेट जैसा, एक मेटालिक प्लेट लिया हुआ है. देखो तो क्या देख सकते हो आप, देखो तो प्लेट जब ये दो मैग्नेट के बीच में से पास होगा, तो मैंने आपको बताया कि कोई भी मेटालिक ऑब्जेक्ट जब मैग्नेट के अंदर से पास होता है तो वो मेटालिक ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है, करंट इंड्यूस होता है. तो आप देख सकते हो कि जब वो प्लेट एंटर होती है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो प्लेट के अंदर जिस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होता है, तो जब प्लेट बाहर निकलती है, देखो देखो जब प्लेट एंटर होती है ना, तो उसके साथ जो लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इंक्रीज होता जाएगा. और फिर वो जब बाहर निकलेगी प्लेट, तो उसके साथ लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स का डिक्रीमेंट होगा. तो मतलब दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में वेरिएशन है. तो आप देख सकते हो कि करंट का इंडक्शन भी अपोजिट डायरेक्शन में आप देख सकते हो. देखो जब प्लेट, वो मेटालिक प्लेट एंटर होती है तो करंट देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, नहीं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. जब प्लेट एंटर हो रही है तो आप देख सकते हो कि जो करंट इंड्यूस हो रहा है वो आप देख सकते हो कि यहाँ पे करंट जो इंड्यूस हो रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है. बट जब वो प्लेट, वही प्लेट जब ये मैग्नेटिक फील्ड में से बाहर निकलती है तो वो करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो रहा है. बट one thing is confirmed that whenever this metallic plate is passes from the magnetic field, when it passes from the magnetic field, what happened inside the plate, करंट इज इंड्यूस. करंट तो इंड्यूस हो रहा है. और वो ऑब्वियस चीज है, एंटर होते टाइम और बाहर निकलते टाइम करंट अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होना वो भी लाजमी है. बिकॉज हमको पता है कि ये जो इंड्यूस करंट होता है वो फ्लक्स के वेरिएशन का, अगर फ्लक्स का वेरिएशन का डायरेक्शन चेंज होता है तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन भी चेंज होता है. जब प्लेट अंदर आ रही है, मैग्नेट में आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसका फ्लक्स इंक्रीज होगा. बट जब वो बाहर निकलती है तो उसका फ्लक्स डिक्रीज होता है. तो क्या होगा कि दोनों केसेस में फ्लक्स का वेरिएशन अपोजिट डायरेक्शन में है. एंड बिकॉज ऑफ दैट ये इंड्यूस्ड करंट विल आल्सो बी इन द अपोजिट डायरेक्शन. चलो सोच लो कि आइडियल सिचुएशन है, यहाँ पे कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं है. तो इसका जो ओसिलेशंस है, सपोज के कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं है, तो ये जो पेंडुलम है उसके ओसिलेशंस कितने टाइम तक चलने चाहिए? Infinite. रेजिस्टिव फोर्स नहीं है
तो ये एक्चुअल में इसका जो ऑसिलेशन है वो कितने टाइम तक चलना चाहिए? Infinite. જ્યાં સુધી મેગ્નેટિક ફિલ્ડ છે ત્યાં સુધી. अगर अगर कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं है तो एक्चुअल में तो अकॉर्डिंग टू द आइडियलिस्टिक सिचुएशन तो ये ऑसिलेशंस इनफाइनाइट टाइम तक चलना चाहिए. यहाँ पे कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तो भी मुझे ऐसा पता चल रहा है कि ग्रेजुअली इसका ऑसिलेशंस ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है, उसका एम्पलीट्यूड ऑसिलेशंस का एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है. तो ऐसा होना जरूरी है बिकॉज ये जो एडी करंट है वो आफ्टर ऑल क्या है भैया? इंड्यूस करंट ही है, और वो इंड्यूस करंट है तो वो क्या करेगा प्रोड्यूस होके? ઓપોઝ કરેगा मैग्नेटिक फ्लक्स. हाँ, वेरिएशन को अपोज करेगा. मतलब वो आफ्टर ऑल इसका जो मोशन है ना ये पेंडुलम का, उसको अपोज करेगा. तो पेंडुलम का मोशन अपोज होगा तो ग्रेजुअली इसका जो एम्पलीट्यूड है वो ग्रेजुअली, कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो भी उसके बावजूद, कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो भी उसके बावजूद यहाँ पे ऑसिलेशंस जो है उसमें एम्पलीट्यूड में डिक्रीमेंट आएगा, डैम्पिंग होगा. इस टाइप के डैम्पिंग को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग बोलते हैं. और ये जो सिस्टम है उसका एनर्जी ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है. अब क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि भाई एनर्जी गया कहाँ पे? बिकॉज अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड. तो हमारा जो सिस्टम का मैकेनिकल एनर्जी था जो हमने ऑसिलेट करने के लिए प्रोवाइड किया था वो कहाँ गया? तो फ्रेंड्स एक्चुअल में यहाँ पे एडी करंट जनरेट होता है. वो ऑब्वियसली वो ऐसा ही पाथ चूज करेगा कि जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम हो. करंट ऑलवेज ट्राई टू फ्लो इन अ पाथ सच अ पाथ दैट ऑफर द मिनिमम रेजिस्टेंस. तो ये एडी करंट डेफिनेटली मिनिमम रेजिस्टेंस वाले पाथ में ही पास होगा. बट कुछ तो रेजिस्टेंस होगा ना, कुछ तो रेजिस्टेंस होगा. तो मतलब क्या हुआ कि वो एडी करंट जनरेट होके वो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन आई स्क्वायर आर टी देयर विल बी सम हीट इज जनरेटेड, कुछ हीट जनरेट होगा. और ये जो हीट एनर्जी है ना वो एट द कॉस्ट ऑफ सिस्टम्स मैकेनिकल एनर्जी. तो ये सिस्टम का जो मैकेनिकल एनर्जी डिक्रीज हो रहा है तो इसके रिस्पेक्ट में ये हीट जनरेट होता है. तो ये मेटालिक प्लेट को अगर आप टच करोगे तो डेफिनेटली आपको क्या फील होगा? थोड़ा उसका टेम्परेचर बढ़ गया ऐसा आपको फील होगा. तो फ्रेंड्स ये एग्जाम्पल के द्वारा एक चीज कंफर्म्ड है कि अगर एडी करंट जनरेट होता है तो सिस्टम का मैकेनिकल एनर्जी ग्रेजुअली, सिस्टम का मैकेनिकल डिक्रीज होता है, डिक्रीज होता है. डिक्रीज होगा. हमारे सिस्टम का एनर्जी डिक्रीज हो रहा है और वो हीट जनरेट होता है. सो इन अदर वर्ड आई कैन से आवर सिस्टम एनर्जी विल गोइंग टू बी डेसिपेटेड और वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी. तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस एडी करंट आर अनवांटेड. वो हमारे सिस्टम को एनर्जी को डेसिपेट करता है, वेस्ट करता है. तो सबसे पहले मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया, एडी करंट क्या है वो मैंने आपको बताया. फिर मैंने उसका एक एग्जांपल दिया आपको, ये दो मैग्नेट के बीच में पेंडुलम का. और तीसरा मैंने ये बताया कि हमारा जो एनर्जी होता है वो रिड्यूस होता है, डेसिपेट होता है. तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि वी शुड फाइंड सम मेथड टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द एडी करंट. देखो एडी करंट को रिमूव तो नहीं कर सकते हम, उसको एलिमिनेट या रिमूव तो नहीं कर सकते हैं, बट उसका इफेक्ट रिड्यूस हो ऐसे कुछ हमको मेथड फाइंड करना चाहिए. तो ये क्वेश्चन एक बार बोर्ड में पूछा था कि राइट डाउन और डिस्कस द मेथड टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ एडी करंट. एडी करंट का इफेक्ट रिड्यूस करने का मेथड एक्सप्लेन करो, ऐसा बोर्ड के एग्जाम में एक बार पूछा गया था. तो अब हम ये मेथड डिस्कस करेंगे. एडी करंट क्या है वो हमको समझ में आ गया. સર એક ડાઉટ છે. बोलो. સર આ જે પેન્ડુલમનું મોશન છે એ જ્યારે વેરિએશન વધી જશે ફ્લક્સમાં કરંટના લીધે તો એ વેરિએશન વધવાના કારણે પેન્ડુલમનું મોશન સ્ટોપ ના થઈ જવું જોઈએ અગર વેરિએશન વધી જાય છે, કેમ કે એ ઓપોઝ કરે છે ને મોશનને. એટલે नहीं, फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो आप? સર આ જે પેન્ડુલમ જે મોશન કરે છે એ એક ટાઈમ પછી એ મોશન સ્ટોપ ના થઈ જવું જોઈએ અગર વેરિએશન વધી જાય તો? हाँ, स्टॉप होगा ही ना, क्यों नहीं होगा, डेफिनेटली होगा. इसका जो अगर इफ वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ position versus time graph, so it will be like this. Initially its amplitude is maximum
बट जैसे जैसे हीट प्रोड्यूस होता जाएगा, जैसे 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 एडी करंट जनरेट होगा, हीट प्रोड्यूस होता जाएगा, ऐसे 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 इसका जो एम्पलीट्यूड है वो ग्रेजुअल ऐसे डिक्रीज होगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि जितना भी हमने मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड किया था उसको ओसिलेशन करवाने के लिए, तो वो सारा खत्म हो जाए, तो एट द लार्ज टाइम आई कैन से इट विल स्टॉप। बराबर, तो वो वही होगा। बिकॉज एडी करंट क्या है, वो इंड्यूस करंट है, तो वो क्या करेगा, मोशन को अपोज करेगा। तो ग्रेजुअली वही तो मैंने बताया कि हमारे सिस्टम का एनर्जी ऐसे डिक्रीज होगा, तो वो एनर्जी गया कहाँ पे, तो वो एनर्जी एज अ हीट प्रोड्यूस होगा। तो ये वही तो मैं बोल रहा हूँ कब का। ओके। ओके सर। तो फ्रेंड्स, अब हम कुछ ऐसे मेथड डिस्कस करेंगे कि जिसके द्वारा एडी करंट का इफेक्ट डिक्रीज हो सकता है। तो हम एक चीज ये कर सकते हैं, देखो मेथड नंबर 1 टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द एडी करंट। तो एक देखो, ये जो चीज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पास होने वाली है, जो चीज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से पास होने वाली है, इसको इसके कुछ पार्ट हम ऐसे निकाल दे। देखो ये फिगर आपने देखा, दिख रहा है आपको, देखो तो। यस सर। क्या किया प्लेट के अंदर, क्या किया कि प्लेट को हमने स्लोट्स में डिवाइड कर दिया। देखो उसमें कुछ हमने कुछ स्लोट्स को हमने कट कर दिया, और ये जो पूरा जो प्लेट था उसके स्लोट्स को मैंने कट करके मैंने उसको इस टाइप का मतलब बना दिया। तो क्या होगा कि अब एडी करंट का फ्लो होने का एडी करंट का फ्लो होने का जो एरिया है, एडी करंट फ्लो होने का जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो उसके द्वारा क्या होगा, एडी करंट का इफेक्ट भी डिक्रीज। डिक्रीज होगा। क्या फ्रेंड्स ये चीज आपको समझ में आया? यस सर। एक चीज ये कर सकते हैं। तो ऐसे हम, देखो एक चीज ऐसी है कि हमको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस आप जब बनाते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस आप जब बनाते हो, तो हमको मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने की ज़रूरत भी होती है। वो कुछ ना कुछ जगह पे उसका यूज़ आता है, तो हमको मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना पड़ता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वहाँ से वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से कोई मेटालिक ऑब्जेक्ट पास भी होती है, ऐसा भी होता है। तो प्रॉब्लम क्या रहता है कि अब जब ऐसा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड भी है हमारे सिस्टम में और वहाँ से मोशन भी है कोई मेटल ऑब्जेक्ट का, तो डेफिनेटली ये एडी करंट का इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। तो वो एडी करंट का इफेक्ट प्रोड्यूस होने वाला है, वो हमको पता है कोई इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस बनाते टाइम। तो हम क्या करेंगे कि जो मेटालिक ऑब्जेक्ट उसमें से पास होने वाला है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से, उसको स्लोट्स में डिवाइड कर देंगे। एक ये चीज कर सकते हैं। दूसरा, किसी ने ट्रांसफॉर्मर देखा? मैं पिक्चर की बात नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअली ट्रांसफॉर्मर जो होता है वो किसी ने देखा, जो एसी टू डीसी में कन्वर्ट जो करता है ना, ऑल्टरनेटिंग। हमारे घर में एसी आता है और डीसी में कन्वर्ट करता है, जो जैसे मोबाइल का चार्जर है उसके अंदर भी होता है। देखा किसी ने ट्रांसफॉर्मर? सर वो सिलेंडर जैसा था वो। नहीं, सिलेंडर नहीं होता। मतलब पूरा एक क्यूबॉइड क्यूब क्यूब जितना जैसा होता है, और क्यूब के अंदर सब कोयल मतलब टन्स माउंट किए होते हैं। पता नहीं। सो ट्रांसफॉर्मर अगर किसी ने मैं बताऊँ आपको तो शायद आपको याद आए। दिखा दो ना इसमें। हम्म। तो ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि उसमें बीच के ट्रांसफार्मर के कोर रीजन, मतलब उसके जो इनर रीजन होता है, कोर रीजन होता है, उसके अंदर एक उसको सॉफ्ट आयन का मटेरियल यूज करना पड़ता है। तो हम एक चीज कर सकते हैं कि वो सॉफ्ट आयन का जो पूरा क्यूब होता है उसको हम लेमिनास, आइसोलेटेड लेमिनास में डिवाइड कर दे, आइसोलेटेड प्लेट्स में डिवाइड कर दे, तो भी ये हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं। इफेक्ट ऑफ एडी करंट के इफेक्ट को हम रिड्यूस कर सकते हैं। पिक्चर आ जाएगा। हाँ वो ही लग रहा है। देखो मूवी। हाँ देखो। ये पूरा पिक्चर का ही दिख रहा है मुझे क्या? नहीं, ये हाँ बम्बल भी दिख रहा है।
लाइफ फिल्म ही आ गया देखो। सर वो एस निकाल दो सिर्फ। हाँ ओके, ये देखा है ट्रांसफॉर्मर, देखो ये ट्रांसफॉर्मर हमारे घर में नहीं होता है, बट ये पावर स्टेशन में होता है। देखा है ये सब कहीं कहीं पे आपके मोहल्ले में होता है, कभी कभी देखा है आपने इस टाइप का। हाँ सर। हाँ, ये प्रॉपर रहेगा, समझाने के लिए ये प्रॉपर रहेगा। ओके, तो ये दिख रहा है आपको? हाँ सर। तो देखो, आप देख सकते हो कि ट्रांसफॉर्मर के अंदर ये जो होता है ना, वो ये सॉफ्ट आयन का पूरा मटेरियल होता है एक्चुअली। तो आप देख सकते हो कि ये जो पूरा मटेरियल है उसको लेमिनास में, प्लेट्स में डिवाइड किया है। देखो, आइसोलेटेड प्लेट्स है, मतलब ये जो पूरा मटेरियल होता है उसको ये पूरा एक एक्चुअली क्या होता है कि क्यूब जैसा होता है, बट उसको सॉलिड फॉर्म में नहीं रखते वो लोग। तो उसको क्या करते हैं कि लेमिनास में डिवाइड कर देते हैं। तो उसके द्वारा भी हम एडी करंट के इफेक्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। तो कोई जिसके अंदर जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आने वाला है, और जिसके वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है और वहाँ पे मेटल भी है, तो मेटल का जो ऑब्जेक्ट है उसको लेमिनास में डिवाइड कर देते हैं। वो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए लेमिनास मतलब इंसुलेटेड प्लेट्स का यूज करते हैं। तो भी हम ये एडी करंट का इफेक्ट रिड्यूस कर सकते हैं। तो द इफेक्ट ऑफ द एडी करंट कैन बी रिड्यूस बाय टू वे। दो चीज हम कर सकते हैं। नंबर एक, आप ऑब्जेक्ट को स्लॉट्स में डिवाइड कर दो, and number two, you can also use a laminas, isolated laminas, to reduce the effect of eddy current. सर हाँ बोलो सर सर आइसोलेटेड लेमिनास सुगो जो। आइसोलेटेड लेमिनास यानी मतलब आइसोलेटेड का मतलब क्या हुआ कि लेमिनास का मतलब क्या हुआ कि एक प्लेट्स जैसे आपका जो बुक है, आपका ये जो पूरा बुक है, राइट। तो ये बुक जो है वो एग्जैक्टली ऐसे एक सॉलिड मटेरियल है, बट वो बहुत सारे पेजेस के द्वारा बनता है। तो दीज आर द लेमिनास, अंडरस्टूड। और Yes. लेमिनास के बीच में कोई इंसुलेटिंग मटेरियल है, दो लेमिनास के बीच में, दो पेज के बीच में कोई इंसुलेटिंग मटेरियल है, दो पेज के बीच में कोई इंसुलेटिंग मटेरियल है, तो वो आइसोलेटेड हो गया। तो ऐसे पूरा जो पूरा बुक मतलब पूरा ये जो ऑब्जेक्ट होता है उसको बहुत सारे लेमिनास मतलब लेयर्स में अगर उसको कन्वर्ट करके बनाते हैं तो भी एडी करंट का इफेक्ट रिड्यूस हो सकता है। इज दैट क्लियर टू यू? यस सर। तो फ्रेंड्स, क्या हमने डिस्कस किया? तो हमने अभी तक ये डिस्कस किया कि एडी करंट क्या है। दूसरा ये डिस्कस किया कि उसका एग्जाम्पल कोई है, तो हमने उसका एग्जाम्पल भी डिस्कस किया कि भाई ये प्लेट के अंदर एडी करंट प्रोड्यूस होता है और उसको इफेक्ट कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, तो वो चीज़ हमने डिस्कस किया।
तो ये इसमें से क्वेश्चन नंबर जो हमने ये जो कुमार पब्लिकेशन के जो बुक है उसमें क्वेश्चन नंबर या क्वेश्चन नंबर हियर इट इज। सो क्वेश्चन नंबर 16, तो 16 का जो हाफ पार्ट है वो आपको प्रिपेयर करना है। मेथड 1 मेथड 2 लिखा हुआ है ना, देखो अगर आपके पास बुक है तो द इफेक्ट ऑफ एडी करंट कैन बी रिड्यूस बाय फॉलोइंग मेथड्स, मेथड 1 मेथड 2। तो मेथड 1 मेथड 2 जो है वो आपको प्रिपेयर करना है एज ए 2 मार्क, और बाकी जो है वो इंट्रोडक्शन है। देखो इफेक्ट एडी करंट जो है ना उसके वैसे मोस्ट ऑफ द केस में वो अनडिजायरेबल है, अनवांटेड है, बट कुछ जगह पे उसका एप्लीकेशन भी है, कहीं कहीं पे एडी करंट के एप्लीकेशन यूज भी है उसका। तो वो लास्ट बोर्ड के एग्जाम में, सॉरी लास्ट टू लास्ट बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ द एडी करंट्स, एडी करंट के इंपॉर्टेंस क्या है, उसका एप्लीकेशन क्या है। तो फ्रेंड्स एडी करंट के 4 एप्लीकेशन है। मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन द ट्रेन्स, फ्रेंड्स आपको पता है जापान के अंदर एक मैगलेव ट्रेन है, पता है? बुलेट ट्रेन। यस सर। मैग्नेटिज्म यस से सर। चलती है वो ट्रेन पटरी के ऊपर चलती है। वैसे सारे ट्रेन पटरी के ऊपर ही चलती है, बट ये थोड़ा ज्यादा ऊपर चलता है, मतलब एयर में विदाउट कांटेक्ट। 550 किलोमीटर पर आवर उसका जो स्पीड है वो 550 किलोमीटर पर आवर। अब सोचो कि इतना स्पीड में ट्रेन जा रहा है और ब्रेक लगाएगा तो क्या होगा। तो ये जनरेट होगा। हाँ अगर ब्रेक लगेगा और अचानक से तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसके वजह से इस टाइप के ट्रेन के सुपर फास्ट ट्रेन के अंदर ब्रेकिंग सिस्टम फॉर्म करने के लिए एडी करंट का यूज होता है। आपको पता है कि एडी करंट क्या है, वो एडी करंट प्रोड्यूस होने के बाद क्या करेगा, वो मोशन को धीरे धीरे स्लो करेगा। अपोज मोशन को करेगा। अपोज करेगा। बट यहाँ पे एडी करंट का एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ये है कि वो मोशन को जैसे ही, मतलब क्या होता है जब वेलोसिटी ज्यादा होता है तो वो मोशन को रेजिस्टिव फोर्स ज्यादा क्रिएट करेगा। जैसे वेलोसिटी डिक्रीज होता जाएगा तो रेजिस्टिव फोर्स भी डिक्रीज होता जाएगा। मतलब इसके वजह से क्या होगा कि एकदम स्मूथ ब्रेक लगेगा, एकदम स्मूथ ब्रेक लगेगा, मतलब आपके झटके नहीं लगेंगे। तो क्या लिखा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर सिचुएटेड, strong electromagnets are situated above the train in some electrically powered train. When the electromagnets are activated, the eddy current induces and rails oppose the motion of the train. As there is a no mechanical linkage, the brake effect will be smooth. तो यहाँ पे एडी करंट के द्वारा जो ब्रेकिंग सिस्टम होता है उसमें कोई मैकेनिकल सिस्टम नहीं है, मैग्नेटिक ब्रेक है, कोई मैकेनिकल ब्रेक नहीं है, मैग्नेटिक ब्रेक है, तो एकदम स्मूथ लगेगी। चलो क्या ये, तो मतलब फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ द एडी करंट टू प्रोड्यूस अ स्मूथ ब्रेक इन द सुपर फास्ट ट्रेन, ये उसका फर्स्ट इफेक्ट है। सेकंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। फ्रेंड्स आपको पता है गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर है, गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर है वो करंट के हिसाब से कोई एक जगह पे लोकेशन पे आके वो स्टेशनरी होता है। तो वो वहां पे अगर एडी करंट वहां पे नहीं होता तो क्या होता पता है, वो जिस जगह पे आना होता है वहां पे थोड़ा वाइब्रेट होने के बाद थोड़ा उसका पॉइंटर स्टेशनरी स्टेट अचीव करेगा, अगर वो वहां पे एडी करंट नहीं होता तो। आई रिपीट, गैल्वेनोमीटर के अंदर जो पॉइंटर होता है वो हमको स्टेशनरी डिफ्लेक्शन हमको बताता है। कोई जब हम करंट पास करते हैं तो उसके रिस्पेक्ट में हमको सपोज के 2 माइक्रो एम्पियर करंट पास किया तो वो पॉइंटर 2 माइक्रो एम्पियर पे जाके वहां पे स्टेशनरी हो जाएगा। उसका रीजन ये है कि वहां पे एडी करंट का इफेक्ट है। अगर वो एडी करंट वहां पे नहीं होता तो क्या होता पता है, वो पॉइंटर 2 पे जाने के बाद वो वहां पे ऐसे थोड़ा वाइब्रेट होने के बाद स्टॉप होता। बट एडी करंट के द्वारा ये वाइब्रेशन होता है बट आपको फील नहीं होता है, वो फटाफट स्टॉप हो जाता है। मतलब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग ही हुआ एक हिसाब से। तो गैल्वेनोमीटर के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग की वजह से ये पॉइंटर जो होता है वो स्टेशनरी डिफ्लेक्शन हमको बताता है। तो क्या लिखा कि certain galvanometers have a fixed core made of a non-magnetic metallic material. When the coil oscillates, eddy current generates in the core opposes the motion of the motion and bring the coil at the rest quickly.
मतलब हमारा पॉइंटर फटाफट एट द रेस्ट आ जाएगा। तो ये गैल्वेनोमीटर के अंदर भी एडी करंट का यूज है। नंबर 3, इंडक्शन फर्नेस। किसी को पता है फर्नेस का मतलब क्या हुआ? भट्टी। भट्टी, जहाँ पे मेटल को मेल्ट करना होता है, जहाँ पे मेटल को मेल्ट करना होता है। तो जनरली जहाँ पे ये मेटल को मेल्ट करता है, तो जनरली आपका आइडिया क्या है, कैसे मेल्ट करेंगे हम? आपका आइडिया क्या है? हीट हीट बढ़ा के। एग्जैक्टली, आपका आइडिया जनरली ऐसा है कि भाई वहाँ पे हम क्या करेंगे कि भाई हीट देंगे मेटल को, और मेटल का टेम्परेचर रेज करेंगे, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट पे जब आ जाएगा तो वो मेल्ट होगा। बट यू विल बी सरप्राइज बाय नोइंग दैट in the magnetic induction furnace we are not going to provide the heat. इंडक्शन फर्नेस में कोई हीट हम प्रोवाइड नहीं करेंगे तो भी मेटल मेल्ट हो जाएगा। कैसे, मैं आपको समझाऊं। तो इंडक्शन फर्नेस में क्या होता है कि बहुत ही हैवी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं हम, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, और वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में से हम मेटालिक प्लेट को घुमाएंगे, मेटालिक प्लेट को रोटेट करेंगे। तो जब जितनी बार वो प्लेट मैग्नेट में से पास होगी तो उतनी बार क्या होगा, उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होगा? जब मेटालिक प्लेट मैग्नेट में से पास होगी तो उसके अंदर क्या होगा? इंड्यूस करंट एडी होगा। करंट। एडी करंट इंड्यूस होगा, और वो एडी करंट इंड्यूस होने के बाद वो कुछ ऐसे पाथ चूज करेगा कि वहां पे उसको कुछ रेजिस्टेंस मिले, कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होता ही है। तो एवरी टाइम व्हेन द प्लेट passes from the magnetic field, eddy current is going to be induced, and because of that, according to equation I square RT, according to the equation I square RT, heat is also going to be induced inside the metallic plate. तो ऐसे हम उसको रोटेट करते ही जाएंगे, करते ही जाएंगे, करते ही जाएंगे। सर हाँ बोलो। सर वो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो यूनिफॉर्म होगी कि नॉन यूनिफॉर्म? उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, वो यूनिफॉर्म भी हो सकती है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती है। बट चीज़ ऐसी है कि whenever a magnetic plate, whenever the metallic plate passes from the uniform or non-uniform magnetic field, eddy current always generates. Is that clear? ओके सर। तो वो एडी करंट जनरेट होगा, उसके द्वारा हीट एनर्जी जनरेट होगा। तो बिकॉज ऑफ दैट ग्रेजुअली ये प्लेट जो है उसका टेम्परेचर रेज होगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो मेल्टिंग पॉइंट जितना हो जाए, तो एट दैट टाइम वो जो प्लेट होगा वो क्या होगा, उसका मेल्टिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे इंडक्शन फर्नेस के अंदर मेल्ट तो हुआ, बट हमने कोई हीट प्रोवाइड नहीं किया था, वो खुद मेल्ट हो गया। तो यू अंडरस्टूड व्हाट हाउ इट वर्क्स। And the fourth application, इलेक्ट्रिकल पावर मीटर। देखो, आपने शायद एनालॉग मीटर्स, अभी तो डिजिटल मीटर्स आपके घर पे होते हैं ये टोरेंट आने के बाद, बट पहले एईसी था, अहमदाबाद इलेक्ट्रिक सर्विस ऐसा कुछ था। तो अहमदाबाद इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन ऐसा कुछ था, एईसी। तो शायद आपने पुराने कभी कोई पावर मीटर, इलेक्ट्रिकल पावर मीटर देखा आपने पुराना, वो कुछ कुछ ऐसा क्यूब जैसा होता है, ब्लैक कलर का, देखा कभी किसी ने? वो इलेक्ट्रिकल पावर मीटर देखा किसी ने? पहले ब्लैक कलर का क्यूब जैसा आता, मतलब पेटी के अंदर आता था, ऐसा कोई किसी देखा, किसी ने देखा? नहीं सर। नोबडी? नहीं सर। तो शायद देखा होता तो मैं ऐसा बोलता कि वो मीटर चालू है कि बंद है, वो देखने के लिए एक अंदर है ना, एक सर्कुलर डिस्क होती है, वो रोटेट होती है, उसके द्वारा हमको पता चलता है कि वो मीटर चालू है कि बंद है। तो वो सर्कुलर डिस्क को रोटेशन करने के लिए भी एडी करंट ही रिस्पॉन्सिबल था। तो एनालॉग इलेक्ट्रिकल मीटर के अंदर सर्कुलर डिस्क रोटेट होती है, तो उसको वो रोटेशन होने के लिए भी एडी करंट ही रिस्पॉन्सिबल है। तो फ्रेंड्स, अगर ये क्वेश्चन पूछते हैं तो ये बहुत ही ईजी हो जाएगा आपके लिए। आपको 4 चीज़ याद रखनी है। एडी करंट क्या क्या कर सकता है, कहाँ पे अप्लाइड हो सकता है? तो नंबर 1, स्मूथ ब्रेक बनाने के लिए, हाई स्पीड ट्रेन में ब्रेकिंग सिस्टम बनाने के लिए, नंबर 1। नंबर 2, गैल्वेनोमीटर में पॉइंटर को स्टेडी डिफ्लेक्शन देने के लिए, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग इन द गैल्वेनोमीटर। नंबर 3, इंडक्शन फर्नेस को बनाने के लिए। एंड नंबर 4, इलेक्ट्रिकल पावर मीटर में वो प्लेट को, सर्कुलर प्लेट को रोटेट करने के लिए। तो these are the 4 applications of the eddy current.
तो यहाँ पे एडी करंट का पूरा जो टॉपिक है वो यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो 2 क्वेश्चन है यहाँ पे। एक क्वेश्चन एडी करंट के बारे में है, वो क्या है, उसके एग्जाम्पल के बारे में है, उसको रिड्यूस करने का इफेक्ट के बारे में है, वो आपको इफेक्ट उसके रिड्यूस करने का जो मेथड्स है वो आपको प्रिपेयर करने हैं। और ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक आध बार क्वेश्चन बोर्ड में पूछा भी गया था कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ द एडी करंट। अब उसके बाद एक टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। वैसे वो टॉपिक आपके टेक्स्ट बुक के अंदर, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग वाला जो टॉपिक है वो टेक्स्ट बुक के अंदर पिंक में, मतलब ये ब्लू में दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन करके दिया हुआ है। बट टॉपिक अच्छा है इसलिए मैं उसको डिस्कस कर रहा हूँ। टॉपिक अच्छा है इसलिए मैं डिस्कस करता हूँ। देखो मेरी बात सुनो, हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, आपको मुझे आंसर देना है। हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हमारे पास 2 पाइप्स है, 2 पाइप्स है। एक पीवीसी मतलब प्लास्टिक मटेरियल में से बना हुआ है, और दूसरा जो पाइप है ना वो मेटालिक मटेरियल में से बना हुआ है। दोनों का लेंथ सेम है, बाकी सब डायमेंशन सेम है, सब कुछ सेम है। एक जो है वो पीवीसी मटेरियल में से बना हुआ है, और दूसरा वाला जो है वो मेटल में से बना हुआ है। और दोनों में सिमिलर टाइप का मैग्नेट, दोनों में मैं सिमिलर टाइप का जो मैग्नेट है उसको मैं फ्री फॉल करा रहा हूँ, अलाउ कर रहा हूँ। वो मैग्नेट को अलाउ कर रहा हूँ कि वो नीचे आए। तो कोई मुझे बताएगा कौन सा मैग्नेट जल्दी नीचे पहुंच जाएगा? वो पीवीसी वाला। ये जो पीवीसी वाला। फर्स्ट वन जो है वो पीवीसी पाइप है, और सेकंड वन जो है वो मेटालिक पाइप है। तो कौन से वाले पाइप में मैग्नेट जल्दी से नीचे आ जाएगा? पीवीसी। मेटल। पीवीसी पीवीसी। क्यों? क्यों पीवीसी क्यों? सर क्योंकि वहाँ पे मैग्नेट पीवीसी के इनर जो लेयर है उसमें अट्रैक्ट नहीं करता, और मेटल में अट्रैक्शन फोर्स होगा तो वो रेजिस्टिव फोर्स होगा, उसकी वजह से मेटल में होगा। थोड़ी slow हो जाएगी। ऐसा कह सकते हैं कि पीवीसी पाइप के अंदर जब ये मैग्नेट पीवीसी पाइप में से पास होगा तो कोई एडी करंट जनरेट नहीं होगा। यहाँ पे कोई एडी करंट जनरेट नहीं होता है। तो वो एडी करंट जनरेट नहीं होता है तो इसका मतलब कि ये मैग्नेट का मोशन जो है उसको कोई अपोज नहीं करेगा, उसको कोई रोकेगा नहीं। बट जब ये मैग्नेट मेटल में से पास होगी, मेटल में से जब वो पास होगा तो क्या होगा कि मेटालिक पाइप के अंदर एडी करंट जनरेट होगा, और वो जनरेट होने के द्वारा क्या करेगा? अपोज करेगा मोशन को। हाँ, वो मैग्नेट के मोशन को अपोज करेगा। तो बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे ये जो मैग्नेट है उसका एक्सेलरेशन एग्जैक्टली ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा, और यहाँ पे जो मैग्नेट है उसका एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से कम रहेगा। तो एक्सेलरेशन उसका कम हो गया तो उसका टाइम थोड़ा, उसका टाइम ज्यादा ज़्यादा लगेगा। ज्यादा। हाँ, तो ये पीवीसी क्वेश्चन पूछा था कि अ मैग्नेट इज अलाउड, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन मैंने देखा था, अ मैग्नेट इज अलाउड टू फॉल इनसाइड द मेटालिक पाइप, then the acceleration of the magnet is equals to g, is a greater than g, is a less than g। तो क्या आएगा फ्रेंड्स? लेस देन जी। लेस देन जी हो जाएगा। तो क्या फ्रेंड्स ये आपको समझ में आया? यस सर। तो ये एडी करंट का जो टॉपिक था वो कम्प्लीटली कंप्लीट हुआ। उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 16 में 2 मेथड जो है वो प्रिपेयर करना है। 17 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एडी करंट्स के जो एप्लीकेशंस है वो। 18 करंट्स ओनली फॉर द इंफॉर्मेशन, ओनली फॉर योर इंफॉर्मेशन। तो बीच में हमने ये 3 क्वेश्चन स्किप किए थे तो वो खत्म हो गए, और अब आते हैं जनरेटर पे, एसी डायनेमो पे। तो फ्रेंड्स, टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 28, 29 एंड 30। तो 20, वैसे 28 में तो ऐसा पूछा हुआ है कि हम फ्लक्स में किस किस हिसाब से चेंज कर सकते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो हमको पता है कि फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है भैया, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला? बी cos थीटा। हाँ, ए बी कोस थीटा, परफेक्ट। तो फ्लक्स का जो फॉर्मूला है वो ए बी कोस थीटा है। तो मुझे ये बताओ कि हम फ्लक्स में कैसे वेरिएशन कर सकते हैं। तो आप 3 चीज कर सकते हो, या तो आप ए में चेंज कर सकते हो, मतलब एरिया चेंज कर सकते हो। नंबर 2, या फिर आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर सकते हो,
या फिर आप दोनों के बीच का एंगल चेंज कर सकते हो। तो द फ्लक्स कैन बी वेराई, फ्लक्स कैन बी चेंज, कैन बी वेराई बाय थ्री वेज। You can change the area or magnetic field or the angle between the A and B. तो अब हम यहाँ पे जनरेटर की बात करेंगे, एसी डायनेमो की बात करेंगे। फ्रेंड्स, ये चैप्टर जो है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो फिनोमिनन है ना, वो एक्चुअली ह्यूमैनिटी के लिए, हमारा ये जो ह्यूमन काइंड है, ह्यूमैनिटी है, उसके लिए एक रिवोल्यूशनरी इन्वेंशन था। बिकॉज ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के वजह से ही एसी जनरेटर और एसी डायनेमो जैसे जो इंस्ट्रूमेंट है उसका इन्वेंशन हो पाया, और उसी की वजह से आज हम हमारे घर पे इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं। एंड इलेक्ट्रिसिटी के इन्वेंशन के द्वारा बहुत सारे और भी इन्वेंशन हो सका, बहुत सारे और भी इन्वेंशन पॉसिबल हो सकी। तो फ्रेंड्स, ह्यूमन काइंड जो ह्यूमैनिटी है उसमें 3-4 बार रिवॉल्यूशन आया। सबसे पहले जो रिवॉल्यूशन आया था वो था वो फ्लेम फ्लेम का इन्वेंशन जो था, वो सबसे पहले का रिवॉल्यूशन, सबसे पहला रिवॉल्यूशन था। उसके बाद व्हील का इन्वेंशन हुआ, वो दूसरा रिवॉल्यूशन था। उसके बाद ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का इन्वेंशन हुआ, एक तीसरी बार रिवॉल्यूशन हुआ। उसके बाद इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी, इंटीग्रेटेड हम उसको चिप भी बोलते हैं, तो आईसी का इन्वेंशन हुआ जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस बहुत छोटे हो गए। और फिर एंड्रॉयड, लास्ट इन्वेंशन वाज द एंड्रॉयड का इन्वेंशन हुआ, वो भी एक टाइप का रिवोल्यूशनरी इन्वेंशन था। तो फ्रेंड्स, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फिनोमिनन पे ही एसी जनरेटर वर्क करता है। तो अब हम वही तो चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन ऐसा है कि डिस्कस द कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ द डायनेमो, एसी डायनेमो। एंड नंबर 2 उसमें ही डिराइव द इक्वेशन ऑफ द ईएमएफ और वोल्टेज प्रोड्यूस्ड इन द जनरेटर इन द डायनेमो। तो फ्रेंड्स, अब हम एसी जनरेटर के बारे में डिस्कस करेंगे, मतलब क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और आपका टेक्स्ट बुक का जो टॉपिक है वो ये रहा आपके सामने। तो ये पूरा इंडक्शन वाला टॉपिक खत्म हो गया, सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, एनर्जी या एसी जनरेटर। तो फ्रेंड्स, ये एसी जनरेटर का फिगर यहाँ पे दिखाया हुआ है, आप देख सकते हो कि बेसिकली क्या है। ओके फ्रेंड्स, एम आई ऑडिबल टू यू? यस सर। Yes, sir. ओके, सो फ्रेंड्स, क्या मेरी आवाज बराबर आ रही है? एम आई ऑडिबल टू यू फ्रेंड्स? यस सर। ओके, तो आप देख सकते हो कि एसी जनरेटर में क्या होता है कि दो मैग्नेट के बीच में एक कॉइल होता है, एक उसको आर्मेचर भी बोल सकते हैं। वो कॉइल को हम मैग्नेट के बीच में घुमाते हैं, उसको रोटेट करते हैं। तो क्या होगा कि देखो, वेक्टर बी एंड वेक्टर बी इज फ्रॉम वेक्टर बी इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो तो आपको पता है कि नॉर्थ टू साउथ होता है। तो ऐसे ये मैग्नेटिक फील्ड तो ये नॉर्थ टू साउथ होगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे होगा। और ये जो कोयल है, जब वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट होगा तो क्या चेंज होगा? कोई मुझे बताएगा? व्हाट इज गोइंग टू बी चेंज्ड? चेंज क्या होगा? कोई मुझे बताएगा? करंट का डायरेक्शन। नहीं 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 नहीं। अच्छा, मैं है ना इसको थोड़ा और सिंपल करके देता हूँ आपको। ये जो फिगर है उसको मैं थोड़ा और सिंपल करके देता हूँ तो आपको ज़्यादा इजी रहेगा। ये फिगर जो यहाँ पे दिया हुआ है उससे मैं थोड़ा अलग फिगर ड्रॉ करके आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट चीज़ वही का वही चीज़ वही है। ओके, सर 10th में जो एसी जनरेटर आता था वही है। हाँ वही वही है, वही है, वही है, वही है ये।
कि बेसिकली दिस इज द नॉर्थ पोल एंड दिस इज द साउथ पोल। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से कहाँ पे होगा? साउथ टू नॉर्थ, अरे नॉर्थ। बोल रहे हो आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सर वो जो, नॉर्थ टू साउथ, इज दैट क्लियर टू यू? यस सर। और इन दोनों के बीच में मैं है ना एक कोयल प्लेस कर रहा हूं। ओके एंड यहाँ पे हम बेरिंग्स मतलब स्लिप रिंग बेरिंग्स को रखेंगे, तो वो क्या कर सकता है कि उसके बेरिंग के द्वारा क्या होगा कि हम यहाँ पे उसको रोटेट कर पाएंगे। बेरिंग्स पता है फ्रेंड्स? हाँ सर। यहाँ पे ब्रशिश होता है, ये ब्रश उसको ब्रश बोलते हैं, बट वो ये जो ब्रश होता है वो आप जो मॉर्निंग में जो ब्रश करते हो वो ब्रश नहीं है। नहीं वो नहीं, टेंथ में पूरा रखा हुआ है सर ये तो। अच्छा, तो अगर आप बोर्ड के एग्जाम में ये फिगर ड्रॉ करो ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डेफिनेटली ये फिगर भी ड्रॉ कर सकते हो बोर्ड के एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है। वो अगर कॉम्प्लिकेटेड है तो ये बहुत सिंपल फिगर हो गया, देखो। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? तो ये भी हाँ सर। कर सकते हो, इसको भी ड्रॉ कर सकते हो आप बोर्ड के एग्जाम के अंदर। क्या ये 3 डायमेंशन आपको समझ में आया अभी? यस सर। तो इसको कुछ मैकेनिकल एफर्ट के साथ हम इसको रोटेट कर सकते हैं। कुछ ओमेगा जे ओमेगा सपोज के उसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है। तो फ्रेंड्स मुझे ये बताओ कि यहाँ पे जो फ्लक्स लिंक्ड होगा वो अगर 1 टन की बात करते हैं तो फ्लक्स विल बी इक्वल्स टू ए बी कोस थीटा। अगर 1 ही टन की बात करते हैं तो फ्लक्स इज इक्वल्स टू ए बी कोस थीटा। अब मुझे ये बताओ कि जब आप ये रोटेट करोगे तो देखो यहाँ पे तो अभी है ना, राइट नाउ आई हैड अरेंज्ड अ coil in a such a manner that it is completely perpendicular to the magnetic field। अभी हमारा जो कोयल है वो completely मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो कोई मुझे बताएगा वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच में एंगल कितना होगा अभी राइट नाउ? 0। हाँ वो 0 होगा। बट अब सोचो कि अब आप कोयल को रोटेट कर रहे हो, तो जब आप कोयल को रोटेट करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड तो वही का वही रहेगा, बट ये एरिया वेक्टर जो है ना वो घूमेगा। तो उसका मतलब कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच का जो एंगल है ना वो थीटा होगा, हाँ वो थीटा चेंज होगा। चेंज होता रहेगा। हाँ चेंज होता रहेगा। तो यहाँ पे जो फ्लक्स का वेरिएशन है, फ्लक्स में जो चेंज हो रहा है वो क्यों चेंज हो रहा है? तो यहाँ पे कोयल का एरिया चेंज नहीं हो रहा है, या नहीं हो रहा है चेंज मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं चेंज हो रहा है, कोयल का एरिया भी चेंज नहीं हो रहा है। तो चेंज क्या हो रहा है? तो एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज गोइंग टू बी चेंज। दोनों के बीच का जो एंगल है ना वो चेंज हो रहा है। इनिशियली मैं ऐसा कह सकता हूं कि इनिशियली थीटा इज 0। सो इनिशियली जो फ्लक्स मिलेगा वो मैक्सिमम होगा ए बी होगा। अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स है तो एन ए बी होगा मैक्सिमम। अगर टोटल एन नंबर ऑफ टर्न्स है तो एन ए बी होगा। बट
if the coil rotates with the angular frequency omega, then after t interval of time, what is the angle subtended between the vector and vector b? चलो आपको ये पता होगा कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम. डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम. तो फ्रेंड्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? ओमेगा टी. एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम. कंसीडरिंग दैट इनिशियल एंगल इज जीरो. इनिशियल एंगल जीरो है तो टी टाइम के बाद एंगल कितना हो जाएगा? ओमेगा टी हो जाएगा. ओमेगा टी. तो फ्रेंड्स टी टाइम के बाद फ्लक्स कितना हो जाएगा? कैन आई से फ्लक्स लिंक विथ ओनली वन टर्न इज इक्वल्स टू ए बी कोस ओमेगा टी. क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? यस सर. इफ थीटा जीरो इज इक्वल्स टू जीरो, अगर इनिशियल एंगल जीरो है तो ही ये सही है. सपोज कि इनिशियल एंगल 90 होता ना, इनिशियल एंगल 90 होता तो यहाँ पे मैंने लिखा होता 90 प्लस ओमेगा टी. 90 प्लस ओमेगा टी ऐसा मैंने लिखा होता. चलो अब अकॉर्डिंग टू द फैराडेज लॉ, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, आपको पता है क्या फ्रेंड्स आज फैराडे का क्या है? प्रोबेबली आज जो है ना फैराडे का बर्थडे है. आज का डेट मुझे जहां तक याद है तो कुछ तो है, आज का डेट फैराडे के साथ कुछ तो लिंक्ड है. तो अकॉर्डिंग टू द फैराडेज लॉ EMF इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी. तो यहाँ पे जनरेटर के अंदर जो EMF प्रोड्यूस होगा, देखो फ्लक्स तो वेराई हो रहा है, एक चीज कंफर्म्ड है, बिकॉज A एंड B के बीच के एंगल जो है ना वो चेंज हो रहा है, तो फ्लक्स तो वेराई हो रहा है. तो मतलब एक चीज तो कंफर्म्ड है कि EMF तो जनरेट होगा. अब वो कितना जनरेट होगा वही तो फाइंड कर रहे हैं. चलो अब ये कोस का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ए बी तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा. कोस का साइन का डिफरेंशिएशन आपको पता है कोस है, तो कोस का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस सर. और जो कोएफिशिएंट होता है टी का, जो कोएफिशिएंट होता है वो क्या करेगा? वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा. टी का जो कोएफिशिएंट है वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा. वो पता है ना फ्रेंड्स आपको? तो साइन का डिफरेंशिएशन कोस, कोस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, एंड कोएफिशिएंट डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लिकेशन में आता है, इंटीग्रेशन में डिवीजन में आता है. तो यहाँ पे EMF का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एन ओमेगा ए बी साइन ओमेगा टी. सो दिस इज द फॉर्मूला. चलो फ्रेंड्स, व्हेन साइन थीटा बिकम्स 1, देखो ये साइन थीटा का वैल्यू 1 होना, वो उसका मैक्सिमम. देखो सीधी सी बात है, आप जब रोटेट करोगे तो कभी ना कभी तो ऐसा होगा ना कि थीटा एंगल 90 हो, कभी ना कभी तो ऐसा होगा एंगल 90 हो. तो व्हेन एंगल बिकम्स 90, जब एंगल 90 होता है तो साइन थीटा 1 हो जाता है. जब एंगल 90 होगा तो साइन थीटा 1 हो जाएगा. सो एट दैट टाइम मुझे कोई बताएगा EMF के बारे में क्या कह सकते हैं? कोई बताएगा मुझे EMF के बारे में क्या कह सकते हैं? मैक्सिमम EMF. तो एट दैट टाइम EMF बिकम्स मैक्सिमम. सही बात है आपका, बिकॉज साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है. और कोई मुझे बताएगा वो मैक्सिमम EMF कितना होगा? तो ये साइन थीटा को 1 कर दो, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम EMF? एन ओमेगा ए बी. नवाब बात नवाबी, ठाट नवाबी. तो फाइनली EMF का जो फॉर्मूला है वो E नॉट sin omega t. This is the final formula where E naught is, where ये E naught is equals to E maximum, that will be equals to नवाब. नवाब. क्या फ्रेंड्स ये आपको फॉर्मूला समझ में आया?
अच्छा, अगर Yes, sir. यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने है ना इनिशियली एंगल 0 लिया था, इनिशियल एंगल 0 लिया था, अगर 90 से स्टार्ट करते तो क्या आंसर आता? तो जहां जहां पे ओमेगा टी होता वहां पे मुझे क्या लिखना पड़ता? 90 प्लस ओमेगा टी लिखना पड़ता। देन व्हाट शुड बी द आंसर? अगर पहले से एंगल 90 होता तो उसमें cos ओमेगा टी लिखना पड़ता। तो फाइनल इक्वेशन आपका होता ई जीरो साइन 90 प्लस ओमेगा टी, मतलब कोस ओमेगा टी हो जाता। तो फ्रेंड्स मैं ऐसा बताने की ट्राई कर रहा हूँ कि जनरेटर का जो वोल्टेज होता है उसमें साइन फंक्शन भी हो सकता है, कोस फंक्शन भी हो सकता है, दोनों पॉसिबल है। देखो वैसे साइन एंड कोसाइन फंक्शन दोनों एक ही फंक्शन है, उसके बीच में खाली फेस डिफरेंस 90 का फेस डिफरेंस 90 का है, बाकी दोनों फंक्शन सेम ही है। तो मैं ऐसा बताना की ट्राई कर रहा हूं कि चैप्टर नंबर 7 में जनरेटर का वोल्टेज कभी कभी साइन ओमेगा टी के बदले कोस ओमेगा टी लिखा होगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है, पॉसिबल है। inside the generator the voltage can be given by the formula E0 sin omega t और E0 cos omega t, both are possible। क्या ये चीज समझ में आया फ्रेंड्स? यस सर। अब थोड़ा और सोच दो, थोड़ा और सोचो, ये जो वोल्टेज आपको मिला वो कैसे वेराई हो रहा है, थोड़ा सोचने की जरूरत है, वो वेराई कैसे हो रहा है। तो फ्रेंड्स देखो EMF वर्सेस ओमेगा टी का अगर ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो व्हेन ओमेगा टी बिकम 0 सो एट दैट टाइम EMF इज आल्सो 0। कभी ना कभी तो इसका वैल्यू 90 होगा, तो जब ओमेगा टी का वैल्यू 90 होगा तब EMF मैक्सिमम हो जाएगा, E0 जितना हो जाएगा, E0। फिर कभी ना कभी ओमेगा टी का वैल्यू 180 होगा, तो व्हेन ओमेगा टी बिकम्स 180 तो साइन 180 है तो वापस से वो 0 हो जाएगा। कभी ना कभी तो वो 270 होगा, तो साइन 270 तो -1 होता है, तो EMF वापस से नेगेटिव मैक्सिमम होगा और वापस से 0 होगा, मतलब ऐसा चलता जाएगा। तो ये जो EMF है ना वो प्लस E0 एंड माइनस E0 के बीच में ऑसिलेट करेगा। प्लस E0 मतलब कभी वो पॉजिटिव होगा, कभी नेगेटिव होगा, कभी पॉजिटिव होगा, कभी वो पॉजिटिव, कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सपोज के राइट नाउ B1 इज एट अ पॉजिटिव हायर पोटेंशियल एंड B2 इज लोअर पोटेंशियल, मतलब करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम B1 टू B2। तो आधे साइकिल के बाद क्या होगा कि ये दोनों का पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो करंट का डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगा। तो मैं ऐसा बताने की ट्राई कर रहा हूँ कि यहाँ पे क्या होता है कि सर्किट के अंदर कभी ऐसे करंट फ्लो होता है क्लॉकवाइज, कभी एंटी क्लॉकवाइज। आफ्टर एवरी हाफ साइकिल करंट चेंजेस इट्स डायरेक्शन आफ्टर एवरी हाफ साइकिल। तो मतलब ये हुआ कि यहाँ पे करंट ऑल्टरनेटिंगली वेराई होता है, कभी क्लॉकवाइज कभी एंटी क्लॉकवाइज, एंड दैट इज व्हाई दिस वोल्टेज इज नोन एज अ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड दिस करंट इज नोन एज अ ऑल्टरनेटिंग करंट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आपको 3 चीज एक साथ सिखाया। नंबर 1 कंस्ट्रक्शन ऑफ द जनरेटर, नंबर 2 इट्स वर्किंग एंड प्रिंसिपल। अगर कोई आपको ऐसा पूछे कि जनरेटर कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जनरेटर वर्क्स ऑन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल which converts the mechanical energy into the electrical energy। तो जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ converting of the mechanical energy into the electrical energy by the help of the electromagnetic induction। So this is the principle of a AC generator। उसका वर्किंग हमने डिस्कस किया, उसका कंस्ट्रक्शन हमने डिस्कस किया, और फाइनली हमने EMF का फॉर्मूला भी डिराइव किया। तो बोर्ड के एग्जाम में 4 मार्क्स में पूछ सकते हैं ये पूरा क्वेश्चन, या फिर ऐसा भी पूछ सकते हैं 3 मार्क्स में कि only draw the circuit diagram of the generator or schematic diagram of the AC generator and derive the formula of the EMF। ऐसा भी पूछ सकते हैं just draw the schematic diagram and derive the formula of EMF। तो क्या फ्रेंड्स ये आपको समझ में आया? આમાં રોટેશન કઈ રીતે થશે? એટલે હાફ સાયકલ rotation it is not possible itself। we should apply the external agency to rotate the generator। कुछ एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड करना पड़ेगा, वो खुद में खुद नहीं होगा, हमको कुछ बाहर से मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा।
और वो देखो आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा कि सर ये रोटेशन कैसे होगा, तो वो रोटेशन कैसे होगा इसी के बेस पे 3 काइंड ऑफ जनरेटर आर फॉर्म्ड। वो रोटेशन कैसे होता है उसी के बेस पे 3 टाइप के जनरेटर प्रैक्टिकल लाइफ में होते हैं। नंबर 1 थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर, नंबर 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर एंड नंबर 3 न्यूक्लियर पावर जनरेटर। I repeat, number 1 thermoelectric generator, number 2 hydroelectric generator and number 3 nuclear power generator। तो हाइड्रोइलेक्ट्रिक जनरेटर में क्या होता है कि बहुत हाइट पे वो डैम होता है और वहां से टरबाइन। वाटरफॉल आता है नीचे और वो वाटरफॉल जनरेटर के ऊपर पड़ता है, तो क्या होता है कि उसका जो डायनेमो आर्मेचर है वो रोटेट होता है मैग्नेट के बीच में, तो जनरेट होगा, अल्टरनेटिंग करंट जनरेट होगा। तो इस टाइप का जो जनरेटर है वो आई थिंक आपने 10th स्टैंडर्ड में शायद अपना ये कहीं ना कहीं पे पढ़ा होगा। तो इट इज कॉल्ड द हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर। इज दैट क्लियर टू यू? यस। नंबर 2 थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर में क्या होता है कि कोल के द्वारा हीट जनरेट करते हैं, कोल का कंबशन होता है, उसके द्वारा हीट जनरेट होता है और वो हीट के द्वारा क्या होता है कि वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करना होता है और वो वाटर के स्टीम में कन्वर्ट होने से क्या होता है कि वो स्टीम का वॉल्यूम बहुत बढ़ता है, तो वो वॉल्यूम को बढ़ने के द्वारा प्रेशर प्रोड्यूस होता है और वो प्रेशर के वजह से ये कोयल रोटेट होने लगती है। तो इसको हाँ जनरली इसी प्रिंसिपल पे जनरली पावर स्टेशन पे पावर प्रोड्यूस होता है, उसको थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर बोलते हैं। तो ये स्टीम के द्वारा हीट प्रोड्यूस कोल जैसे कोई फ्यूल के द्वारा हीट जनरेट करके स्टीम प्रोड्यूस होता है और उसके द्वारा जनरेटर को रोटेट करवाना होता है, उसको थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर बोलते हैं। और न्यूक्लियर पावर जनरेटर में क्या होता है कि ये जो जनरेटर को रोटेट करने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर फिशन के द्वारा जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है उसके द्वारा जनरेटर को रोटेट करना होता है, तो उसको न्यूक्लियर पावर जनरेटर बोलते हैं। तो ये 3 टाइप के जनरेटर एग्जिस्टिंग होते हैं। क्या ये बात आपको समझ में आया फ्रेंड्स? यस। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन नंबर 29 के अंदर 2 क्वेश्चन है। नंबर 1 डिस्कस द प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द एसी जनरेटर, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन। नंबर 2 ड्रॉ द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ अ एसी जनरेटर एंड डिराइव द फॉर्मूला ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ। अगर दोनों साथ में पूछ ले तो 4 मार्क्स में, अलग अलग पूछते तो 2 मार्क्स में। तो ये क्वेश्चन नंबर 29 हमने खत्म किया और उसमें मैंने स्पेसिफिकली डेरिवेशन ऑफ द ईएमएफ अलग से टॉपिक दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 30 डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक, राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ द ईएमएफ एंड शो हाउ इट वेरी विद द टाइम। तो वो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे केस 1 केस 2 स्टेज 1 स्टेज 2 करके लिखा हुआ है कि स्टेज 1 में 0 डिग्री है, फिर स्टेज 2 में 90 डिग्री होता है, फिर 180 डिग्री होता है, फिर 270 डिग्री होता है। मतलब ये 4-5 अलग अलग केस करके अलग अलग समझाया हुआ है, मैंने वो फिगर में एक साथ एक्सप्लेन कर दिया। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 30 है वो खाली आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि वो टाइम के साथ वोल्टेज कैसे वराई होता है। तो हमने देखा कि अगर वो साइन फंक्शन है, अगर वो जनरेटर में जो वोल्टेज प्रोड्यूस हुआ है वो साइन फंक्शन है, तो साइन फंक्शन के द्वारा ही वेराई होगा ना भैया। तो 0 से मैक्सिमम, मैक्सिमम से 0, नेगेटिव मैक्सिमम चलता जाएगा। तो जनरेटर में वोल्टेज कैसे वेराई होता है वो क्वेश्चन नंबर 30 था। वो जस्ट आपके इंफॉर्मेशन के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए है, समझ के लिए है। एंड क्वेश्चन नंबर 31 डिस्कस द टाइप्स ऑफ द जनरेटर। तो वो भी मैंने आपको बता दिया कि 3 टाइप के जनरेटर होते हैं। तो डिस्कस द टाइप्स ऑफ द जनरेटर एंड हाउ मच द पावर इट कैन डिलीवर। तो जनरेटर के द्वारा बहुत सारा पावर जनरेट कर सकते हैं हम। 500 मेगावाट जितना पावर हम जनरेट कर सकते हैं, 500 मेगावाट जितना पावर हम जनरेट कर सकते हैं, जिसके द्वारा 100 वाट के 100 वाट के 10 लाख बल्ब हम 5 आवर के लिए एक साथ चालू कर सकते हैं। तो ये जनरेटर था। हमारे इंडिया में जनरेटर के द्वारा जो एसी वोल्टेज प्रोड्यूस होता है, मतलब जनरेटर का घूमने का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो 50 हर्ट्ज है। अमेरिका में ये जो फ्रीक्वेंसी है वो 60 हर्ट्ज है। 60 होगा। इंडिया में 50 है, अमेरिका में 60। हमारे घर पे जो एसी वोल्टेज आता है उसका फ्रीक्वेंसी अगर आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट देखो तो वहां पे लिखा होता है 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज ऐसा लिखा होगा। तो हमारे इंडिया में ये जो फ्रीक्वेंसी होता है वो 50 हर्ट्ज का होता है
अमेरिका में ये जो फ्रीक्वेंसी है वो 60 हर्ट्ज का है। चलो मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो। ऐसा क्वेश्चन मैंने गुजसेट में देखा था कि इन आवर होम in our home in 1 second AC voltage becomes how many times zero? In our house AC voltage becomes how many times zero in 1 50 टाइम, कितना टाइम? 1 सेकंड 50 टाइम। 50 टाइम नहीं आएगा, गलत आंसर है। 1 सेकंड के अंदर कितनी बार जीरो होगा? देखो आप यहाँ पे देखो, मैंने एक साइकिल ड्रॉ किया, तो जब कोई एक साइकिल पास होगा ना तो उसका वैल्यू 2 बार मैक्सिमम होगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, 2 बार उसका वैल्यू 0 होगा। इन 1 कंप्लीट साइकिल द वोल्टेज बिकम्स 2 टाइम मैक्सिमम एंड 2 टाइम 0। तो एक साइकिल में 2 बार 0 होता है और फ्रीक्वेंसी उसका 50 है, तो इसका मतलब क्या हुआ? फ्रीक्वेंसी 50 100 टाइम, हुआ कि 1 सेकंड में 50 साइकिल्स पास होगा। 1 सेकंड में 50 साइकिल्स पास होगा और एक साइकिल में 2 बार 0 होता है, तो मतलब 1 सेकंड में कितनी बार 0 होगा? 100 टाइम, 100 टाइम्स। अगर हमारा घर इंडिया में है तो, अगर हमारा घर अमेरिका में होता तो 120। तो 120 टाइम आंसर, 120 टाइम शुड बी द आंसर। क्या ये बात आपको समझ में आई फ्रेंड्स? यस सर। सर आप सही, आज फेराडे का बर्थडे है, 22 सितंबर 1791। क्या बोल रहे हो? आज फेराडे बर्थडे है, 22 सितंबर। है ना, देखा आपने? हाँ, 1791। है ना, बर्थडे है ना फेराडे का आज। हाँ सर। तो कोई बात नहीं, घर पे केक केक काट लेना। तो अच्छा तो हमने इसीलिए ये चैप्टर को थ्योरी यहाँ पे हमने ख़त्म किया। चैप्टर का थ्योरी हमने यहाँ पे ख़त्म किया। तो फ्रेंड्स एक आध न्यूमेरिकल भी ले लेते हैं इसके बेस पे, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम ये पूरा चैप्टर कम्प्लीटली ख़त्म करेंगे। तो फ्रेंड्स लेट मी डिस्कस द न्यूमेरिकल। इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, इसको मैं सेव करता हूँ। ये फोटोग्राफ मैं आपको भेज दूंगा। अगर आपको जनरेटर का मैंने जो फिगर ड्रॉ किया हुआ है वो भी आप ड्रॉ कर सकते हो एग्जाम के अंदर। ओके, तो एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं, लास्ट न्यूमेरिकल जो है ना, इलस्ट्रेशन नंबर 11। इलस्ट्रेशन नंबर 11, क्या ये कमला आपको दिख रही है? आर यू एबल टू सी दिस कमला? कमला, अच्छा। हाँ, अच्छा, तो क्या लिखा है कि कमला पेडल्स स्टेशनरी बाइसिकल and bicycle are attached to a 100 ton coil of area something. The coil rotates half revolution per second। मतलब उसका हमको फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो हमको फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है रोटेशन का, और वो कितना है? हाफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड, मतलब हाफ हर्ट्ज। तो अगर ओमेगा फाइंड करना है तो आपको पता होगा कि ओमेगा इज इक्वल टू 2πf होता है। ओमेगा इज इक्वल टू 2πf, और एफ का वैल्यू जो होता है 1/2 होता है। तो ये हो जाएगा पाई रेडियन पर सेकेंड। चलो हमको ओमेगा मिल गया। और सोचो फ्रेंड्स, यहाँ पे कमला ने इंडायरेक्टली क्या बनाया? उसने मैग्नेट के अंदर कोयल को रोटेट किया। तो ये एक्चुअल में ये क्या हो गया? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोयल का रोटेशन करना, मतलब ये क्या हुआ? एक टाइप का क्या हुआ? ये जनरेटर। जनरेटर ही हुआ। तो करना क्या है हमको? तो करना ये है कि हमको मैक्सिमम वोल्टेज फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स हमने डिस्कस कर लिया कि जनरेटर के अंदर जो मैक्सिमम ईएमएफ प्रोड्यूस होता है वो कितना होता है? नवाब। नवाब। बात नवाबी, हाट नवाबी। सो मैक्सिमम ईएमएफ इज इक्वल टू नवाब। क्या आपको नवाब दिया हुआ है? क्या पूरा नवाब है? नंबर ऑफ टन्स यू हैव 100। ओमेगा जस्ट वी हैड फाउंडेड इट इज ऑफ पाई। एरिया इज इक्वल टू 0.1 मीटर स्क्वायर एंड मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन 0.01 टेस्ला। तो पूरा नवाब दिया हुआ है, पूरा नवाब दिया हुआ है। तो क्या ये आप फाइंड कर सकते हो वोल्ट? यस सर। इज इट ओके फ्रेंड्स?
Yes, sir. यस सर। ये करने की जरूरत है? नहीं सर। Nah, sir. Okay, so friends, I had completed the theory. मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि चैप्टर 5, 6, 7 एंड 8 ये चारों चैप्टर फटाफट कंप्लीट हो गए। तो ये 6 चैप्टर को थ्योरी यहाँ पे हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम उसके पूरे जो न्यूमेरिकल्स बाकी बचे हैं उसको कंप्लीट कर देंगे। ये चैप्टर का एंड हो जाएगा। और आई होप कि आप लोगों ने वो न्यू MCQ का नोट्स कलेक्ट कर लिया होगा एंड यू आर साइमल्टेनियसली सॉल्विंग द MCQ। एक चैप्टर नंबर 4 का रह गया है, वो हम कभी एक्स्ट्रा लेक्चर लेके उसको खत्म कर देंगे। बट यू शुड बी रेडी फॉर द डाउट्स ऑफ द चैप्टर नंबर 6 MCQs। ओके फ्रेंड्स, यस सर। Yes, sir. आज का सेशन में यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। फ्रेंड्स